Let me first answer few of the questions which have been asked through app and YouTube. निसार अहमद वार साहब का सवाल है, प्रिलिमिनरी अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर विच अकाउंट? पहले प्रिलिमिनरी अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है, दीज आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी, it's a real account because it's a fictitious asset. It's a fictitious asset, and today I'll be coming on that, what fictitious assets are and what this preliminary expenses are. I hope Nisar Ahmad War Sahab, you got your answer. Preliminary account is not an account, preliminary expenses, and it is classified under which account? It is classified under real account because it is a fictitious asset. Zarina has asked, explain, repeat, credit and debit. Debit and credit right now are two sides of accounts. Debit is the left hand side of the account, credit is the right hand side of the account. Third question has been posed on YouTube, the people which follow us on YouTube. Why prepaid expenses or outstanding salary come under representative personal account? I gave its answer yesterday because we have personal and impersonal accounts. So this outstanding salary, it represents a group of persons to whom we owe that salary. So that's why it comes under the representative personal account. And the fourth question has come from YouTube. And now I will answer this, but I don't know whether you will get it or not. Differentiate between capital reserve and reserve capital. Differentiate between capital, अभी हमने reserves पढ़ा नहीं ना. Differentiate between capital reserve and reserve. Capital reserve is that part of the profit. Capital reserve is that part of the profit which is kept in the reserve form for future exigencies, future use. ना रिजर्व कोई प्रॉफिट उठाते हैं, प्रॉफिट में से वो पार्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हम फ्यूचर के लिए रखते हैं, वी कॉल दैट कैपिटल रिजर्व. वी कॉल दैट, ये कैपिटल मजदुलान, ये प्रॉफिट में से उठाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसको ऐड हो जाता है? कैपिटल को. अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था, गेन इज एडेड टू द कैपिटल, लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द. So this capital reserve is that part of the profit which is kept aside to meet the future exigencies. Yeah, sometimes we have expansion plans, growth plans, and reserve capital, ये वो कैपिटल है जो अभी हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं किया होता है, अभी हमने शेयर होल्डर से वो रेज नहीं किया होता है. I hope if you understand the company form of organization, then only, gentlemen, you will get what reserve capital is. Reserve capital is that part of the authorized capital which has not been subscribed by the people yet. जिसके अभी पैसे आए नहीं होते हैं, that is reserve capital. अभी आप लोगों को ये याद रखने की जरूरत नहीं है. Reserve capital, you don't have to do anything with that. I hope answers have been cleared. Now today I'll be asking you questions. I'll be first, the exercise we'll do because mocks थोड़े हमें करने हैं. Today I'll be asking you questions. It's mandatory. You will differentiate them. पहला जो क्वेश्चन मेरा है, I'll be saying some names out here, some accounts. You will say whether this is an asset or a liability. बस. You will say whether this is an asset or a, that's it. Right now, पहले आपको पहला क्वेश्चन है, you have to say whether it's an asset or a, fine. Shall I start? The first one, plant and machinery. Brilliant. Goodwill, asset. It is intangible, but it's an asset. Right now, you just tell me, पहला question है, you just tell me, is it an asset or a, very good, you're doing good. Salary due. Salary due. Salary due. Very good, brilliant. You people are understanding things. Due means which is due but has not been paid yet. Due gay outstanding. Payable. Very good.
Salary due, it's a liability. It's a, because salary due and outstanding salary is one and the, very good, brilliant. Loan taken from bank. Loan taken from bank. Brilliant. कभी किसी को कोई कंफ्यूजन होगा पूछिएगा. बॉम्ब रिजर्व, आई नेवर इंसल्ट पीपल. इट्स अ लर्निंग कर्व. यू कैन आस्क मी. नहीं सर रिपीट कीजिए, कैसे लायबिलिटी है? सैलरी ड्यू, एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स. हाउ मेनी ऑफ यू से क्रेडिटर्स इज एन एसेट? डेटर चुकूरी एसेट. क्रेडिटर क्या गो? क्रेडिटर क्या गो? क्रेडिटर गो येमिस बिजनेस पोसदार, टू होम बिजनेस ओज मनी. इट्स अ ऑब्लिगेशन बेटी, डोंट वरी. इट्स अ एसेट शक बे ही वना. चलिए, अच्छा आप ही बोलोगे बेटी, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं. लोन गिवन टू फ्रेंड. लोन गिवन टू फ्रेंड. Loan given to friend. Loan given to friend. हमारे लिए एसेट है ये, ब्रिलियंट. उसके लिए लायबिलिटी है, ब्रिलियंट. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल, जो पहले दिनों हमने वो एक्सरसाइज की एसेट्स पे बहुत ज्यादा. इट इज ओनली पॉसिबल देन. श्रैश एसेट, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ ए हमारा डेटर. अब डेटर को सेल्स बेचते हैं, ही मतलब ही ओव्स अस मनी. ये हमें वापस लोन कर देगा, है ना? हमने किसी को लोन दिया है. क्लियर है? क्लियर. इस लोन पे जो ये हमें इंटरेस्ट देगा वो हो गई अदर इनकम, वो हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम. जो लोन दिन काम करा, हमने ऐसी अपने बिजनेस में से किसी को लोन दे दिया. क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड. डेटर्स, डेटर्स. तछन गलती मैडम यही करक सास गसक ओवर कॉन्फिडेंट लेखक लायबिलिटी क्रेडिटर्स लेखक एसेट. हैव टू बी वेरी कॉशियस. कैश इन हैंड, वेरी गुड. अनसोल्ड स्टॉक, एसेट. यस, अनसोल्ड स्टॉक इज एन एसेट. ब्रिलियंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स अ लायबिलिटी. इट्स अ, हमने शॉर्ट टर्म बैंक से हमें मिसमैच होता है तो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होती है. यस, वेरी गुड, ब्रिलियंट. रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. यस, वी हैव टू पे टू रेंट टू द लैंडलॉर्ड. वी हैव नॉट पेड इट येट. इट्स अ, वेरी गुड. कंप्यूटर, सिंपल है. फैक्स मशीन, एसेट. वेरी गुड. Now, the second question, you will tell me whether these are, ये किस किस्म के एसेट्स है. खाली एसेट नहीं बोलना है, किस किस्म के एसेट्स है. इज इट अ फिक्स्ड एसेट? इज इट अ टेंजिबल एसेट? इज इट एन इंटेंजिबल एसेट? इज इट अ करंट एसेट? नॉन करंट एसेट विच इज फिक्स्ड एसेट. वेरी गुड. This is wet. Patents, intangible. है ना? Copyrights, intangible. सब एसेट्स है. आप सुनिए तो पहले. चलिए, आप, मैं पहले एक हिंट दूंगा आप लोगों को. ये सारे एसेट्स हैं, ये सारे. अब आप मुझे बोलोगे विच टाइप ऑफ एसेट दिस इज. चाहे ये, या तो ये नॉन करंट होंगे, जिनको फिक्स्ड भी बोला जाता है, जिनको, है ना, ये पता है आपको. या तो ये का लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है,
यथ आब यथ थोमुत ये गहन मगर ये ना उधर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या ये करंट होंगे जिनको शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, या फिर इंटेंजिबल टेंजिबल के हिसाब से आप बोलोगे, ठीक है। और आप बोलोगे फिर प्रिलिमिनरी अगर कोई होगा, फिक्टिशियस, सॉरी, वो मैं आपको समझाऊंगा आज ही इसी में फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं। आई विल टेल यू फिक्टिशियस कौन से, डोंट वरी, अभी आप याद रखिए कि कौन से हैं। क्लियर है? पहला फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट एज वेल एज टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट एज वेल एज चीज, बिकॉज वी डोंट बाय फर्नीचर अगेन एंड अगेन फॉर द बिजनेस। बार बार मत लाते हैं फर्नीचर। वेरी गुड, ब्रिलियंट। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, current asset, because cash itself is a current asset. Cash itself is a cash. Cash is the current asset is which can be converted into cash. It is already in the form of cash. Cash is a current asset. Cash is a, and which type of current asset? Liquid. Which type of current asset? Liquid. Liquid क्या है? Liquidity of assets. सर गलत भी हो जाए कोई नहीं, सब है। Brilliant, very good. The ability of an asset to get converted into cash के बाद सबसे ज्यादा किस? गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर्स, बाकी कंपनियों के शेयर हमारे पास है। आई विल गो टू माई डीमैट अकाउंट, कन्वर्ट देम इनटू कैश। सुना? रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। यस, हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड, लेट हिम आंसर। गॉड बोस, मैं क्या वोन, मैं कत पे वोन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश रेडिली। लिक्विडिटी पे उसको लिक्विडिटी उन प्रसान किन करंटुक गॉड पाने बे करंटुक मशीन छा जरूरत कैशस मस कन्वर्ट करनी ना, दैट्स व्हाई दैट इज फिक्स्ड एसेट। सो शुन तवे करंट गो विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, विच कैन क्या, विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब आएंगे लिक्विडिटी पे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको कैश में कन्वर्ट करना ही करना है। अगर उनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको डेटर पैसे नहीं देंगे, स्टॉक अनसोल्ड रहेगा। हम कैसे पे करेंगे सैलरीज टू सप्लायर्स, है ना? इट इज बेसिकली द कैश कमिंग फ्रॉम द करंट एसेट्स, वी पे द करंट लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस। अब अगर हम बैठेंगे फिक्स्ड एसेट्स को बेचने, पत क्या काम करो, काम कत करो, निमो यह बिल्डिंग करित, हम फोन करित, रिकॉर्डिंग कम सत करो, बोर्ड निमो करित, लेखो कत पे। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। डेटर तुई फिलहाल, सपोज यू हैव पेड ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फी, यू आर आवर डेटर्स। व्हेन यू विल पे द कैश, वी विल पे द ऑब्लिगेशंस, द रेंट, द इलेक्ट्रिसिटी बिल। दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क्स। नाउ लेट्स कम टू द लिक्विडिटी पार्ट। Liquidity of an asset is the ability to get it converted into, कौन कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। मशीन लाइक टाइम, जैसे हम पर्टिकुलर मशीन, अब आपको उस टाइप का सेलर ढूंढना है जो इंटरेस्टेड है ये मशीन खरीदने में। टाइम लगेगा ना। I have a 5 canal land on 90 feet wherein per canal costs ₹4 crore। 6 करोड़ कुछ कड़िया की साथ मे गोल्ड गर, जाओ मां को चोरी करो गोल्ड की रिंग, ऐसे बायर आएगा आपके पास। यू विल सेल इट इंस्टेंटली बिकॉज इट कैन बी इंस्टेंटली कन्वर्टेड इनटू कैश। शेयर्स आपको किसी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है, यू हैव शेयर्स ऑफ सम कंपनी, यू कैन इंस्टेंटली कन्वर्ट देम इनटू कैश। वेरी गुड सर, यू गेटिंग गुड? ओके, now this was a current asset as well as liquid. Now you will answer one more, rent prepaid। मैं अब ऐसे ही लिखूंगा, अब छोड़िए असेट, रेंट प्रीपेड। Oh, brilliant. Rent prepaid, it's a current asset because rent is an expense, prepaid expense is an asset। मगर which type of asset? Current asset। 1 साल की हम दे के रखते हैं, हम दान वेरी न्यूज रेंट देते, वैसा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा।
चलिए, वेरी गुड, ब्रिलियंट. रेंट प्रीपेड इज विच एसेट? करंट एसेट. बस इट्स जस्ट अ करंट एसेट. ना ये टेंजिबल है ना ये इंटेंजिबल है, इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते. गुडविल एज वेल, नॉन करंट एज वेल एज इंटेंजिबल, ये दोनों है. गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट्स देयर फॉर लॉन्ग, यू डोंट सेल इट. It is intangible as well as fixed, long term. Very good, brilliant. आप मुझे सारे characteristics assets के बोलिएगा. Building, non-current, long-term, fixed as well as tangible, as well as tangible. Brilliant. Preliminary expenses. Preliminary expenses, fictitious asset. फिलहाल थी याद. Preliminary expenses, fictitious asset. लास्ट पर बोलेंगे. Preliminary expenses, preliminary expenses, fictitious asset. अभी याद रखिएगा. क्लियर है? इसमें 2-3 चीजें आते हैं, वो आपको याद करवाएंगे. चलिए, उसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर्स. डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट नहीं किया, सॉरी डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट. सॉरी डिस्काउंट या लॉस या न डिस्काउंट एसेट है न डिस्काउंट लायबिलिटी है, खाली डिस्काउंट. खाली, क्या वो एसेट है? नहीं. क्या वो लायबिलिटी है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट. इट्स अ, ये सोल प्रोपराइटर को होता, ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को होता है. किनको होता है जहूर? जो शेयर्स मार्केट में इशू. अब ये अलाउड भी है नहीं, आप रखिए याद. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट. विच एसेट? विच एसेट? अगर मैं ये पढ़ाने बैठूंगा फिर मुझे कंपनी अकाउंट्स करना है, जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है. कंपनी अकाउंट्स हम किसका पढ़ रहे हैं? सोल प्रोपराइटर. शेयर रेल कंपनी से इशू करा. शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. अब तो अकाउंट डिसअलाउ भी हो गया है एज बाय सेबी रेगुलेशंस. तो ये आपको आप खाली याद रखिएगा. दिस इज अ विच एसेट? फिक्टिशियस. विच एसेट? फिक्टिशियस एसेट. वेरी गुड. स्टॉक ऑफ गुड्स. स्टॉक ऑफ गुड्स, करंट एसेट. क्या गई? लॉन्ग टर्म गई, बेजार. स्टॉक ऑफ गुड्स, करंट एसेट. स्टॉक लॉन्ग टर्म नहीं, करंट एसेट. शॉर्ट टर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैश. बेटा देखो, यही वहां हो जाता है. ये कार्य तक मखलो, दैट्स इट. तयित करित चुनस. इसीलिए 1-on-1 आप पूछ भी सकते हैं जहां आपको कंफ्यूजन होगा. क्लियर है? वेरी गुड. ओके बेटा. कॉपीराइट, इंटेंजिबल एज वेल एज नॉन करंट, इट्स फिक्स्ड. कॉपीराइट इज विद यू फॉर लॉन्ग. क्लियर है बेटा? वेरी गुड. कैश इन हैंड, करंट एसेट एंड लिक्विड. एंड लिक्विड ची मैं त्रयमा मान. कुछ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स. शॉर्ट टर्म, इन्हीं को लिक्विड माना जाता है. क्लियर है बेटी? क्लियर है बेटी? वेरी गुड. ओके फाइन. कोल माइन. कोल माइन, यस, नॉन करंट. इट्स अ फिक्स्ड नॉन करंट, मगर इसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट. क्या बोलते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? वेरी गुड. इसको जो ये खत्म होने वाले होते हैं ना, डिप्लीटिंग जो होते हैं, जिनमें डिप्लीशन होती है, विच सुनिए सुनिए सुनिए, जो बाकी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, एक्सेप्ट लैंड. एक्सेप्ट लैंड हमेशा अप्रिशिएट होता है. लैंड हमेशा, मोबाइल फोन ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, मगर ये क्या होता है? डेप्रिशिएट. इसका वैल्यू डाउन होता है. जो ये नेचुरल रिजर्व्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल या कोल, इनको क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स. क्या बोलते हैं? ये होते हैं फिक्स्ड, मगर कौन से वाले होते हैं? क्या खुद खत्म गसान, डिप्लीटिंग नेचर के. ये लॉन्ग टर्म होते हैं, मगर कौन से होते हैं? वेस्टिंग. इनमें आते हैं ऑयल वेल्स, कोल माइंस, ये सारे कौन से होते हैं? वेस्टिंग. कौन से? हमने पढ़ा नहीं था, अब यहां पे आया वेस्टिंग. क्या बोलते हैं? वेस्टिंग. कोई वहां पे आएगा कोल माइन इज, फिर आएगा इंटेंजिबल
वेस्टिंग, आप लिखोगे है ये फिक्स्ड, है ये, मगर किस किस्म का फिक्स्ड? वेस्टिंग। वेरी गुड, ब्रिलियंट। डेटर्स, डेटर्स, वेरी गुड। क्या नहीं से बेटे डेटर्स इज अ लिक्विड एसेट? नो, कभी ये कैश देंगे भी नहीं। नेवर से डेटर्स इज अ लिक्विड, नेवर से डेटर्स इज लिक्विड। नॉट एवरी करंट एसेट इज लिक्विड। कभी डेटर बोलेंगे हमारे पास कैश ही नहीं है, जाओ अगले महीने आ जाओ। लिक्विडिटी मींस इंस्टेंटली कन्वर्टिंग इट इनटू कैश। क्लियर? क्लियर? ब्रिलियंट। Yes, we are going good. Motor vehicle, business का अपना motor vehicle, that's a fixed asset, non-current asset and tangible. And tangible. Very good. You're doing well. हाँ, commission accrued. Commission accrued. Current asset. Commission accrued. Accrued छु income सिटी मा वुच वांग गस्तोय अतन doubt. Very good. ये गो असल ये आव। अगर आशी लिखित गोबर, अगर आशी लिखित आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्या आशी लिखित? आउटस्टैंडिंग ना, गोड़ा आशी लिखित आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या आशी लिखित? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? करंट लायबिलिटी। करंट तो क्या वोनू अत करंट लायबिलिटी? बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ करंट। वेरी गुड। वोनू नज हे वोनूज वेरी गुड। सैलरी हेक इनकम जहन वसित मत, सैलरी इनकम आपके लिए इनकम होगी, बिजनेस के लिए मत सैलरी इनकम होगी। बिजनेस के लिए क्या है सैलरी? बिजनेस के लिए क्या है सैलरी? एक्सपेंस। हाँ, ये पत आउटस्टैंडिंग रोजान छो एक्सपेंस सु क्या बना? लायबिलिटी। ब्रिलियंट। गस इथे कन समझन वन छ अतन पॉइंट अक बोस दबा ये गस यूनी पॉइंट और ये आया भी। अगर अब लिखा होगा अगर लिखा होगा आउटस्टैंडिंग कमीशन, एक सेकेंड, कमीशन है कि ना इनकम तो एक्सपेंस तसित। कभी हम कमीशन रिसीव करते हैं, कभी हम कमीशन। अब यहां क्या इसको मानेंगे? जहां आउटस्टैंडिंग लिखा होगा वो मानना चाहिए एक्सपेंस। क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? एक्रूड इनकम के साथ होता है। एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड। अगर अब लिखा है आउटस्टैंडिंग कमीशन, वी विल कंसिडर इट एज अ करंट लायबिलिटी। वी विल कंसिडर इट एज अ, वी विल कंसिडर इट एज अ, समझ आया? जस्ट चाहे समझ। कमीशन इज बोथ इनकम एज वेल एज। अब कहां यहां बोलेगा? ये मत बोल रहा है वहां पे। हां, अब ये बोलेगा कमीशन अर्नड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग। तिल छपाई है इनकम, तब ये एसेट है। या बोलेंगे कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, तब पता है लायबिलिटी। मगर लिखिए सॉरी कमीशन आउटस्टैंडिंग, इट्स अ लायबिलिटी। अगर अब लिखा है एक्रूड कमीशन, accrued commission, accrued always comes with outstanding incomes, accrued always comes with, तब commission क्या है? income, and outstanding income is an asset. accrued salary आसन ज़हन कभी नहीं हो सकता। accrued rent हो सकता है, क्योंकि rent कभी कभी income भी होती है। एग्जाम्पल मैंने दी, मैंने उस दोस्त को ज़हूर को अपनी बेसमेंट दी, इसने वहां जिम खोला, ये मुझे रेंट दे रहा है, वो मेरे लिए रेंट क्या है? इनकम। इसके लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्रूड रेंट अगर होगा वो क्या है? करंट एसेट। एक्रूड सैलरी आशना सो आशी नजा। एक्रूड इज लक, एक्रूड इज विच इज अर्नड, बट एक्रूड इज दैट इनकम which is earned but not yet received. आवा समझ? Accrued is income